বাঁচাও। সত্যি কথা, এই কেমিক্যাল আমাদের সব কিছু কেড়ে নিচ্ছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবাই এই কেমিক্যালের বিরুদ্ধে কিন্তু অলরেডি আওয়াজ তুলেছে। পাশেই ছোট্ট একটা সিকিম স্টেট নাম জানেন, এই সিকিম গভর্নমেন্ট পুরো কেমিক্যাল ফ্রি করে দিয়ে সিকিম ইজ দ্য অর্গানিক স্টেট গত 10 বছর ধরে চলছে। বিশ্বে, ওয়ার্ল্ডে অস্কার প্রাপ্ত সিকিম। তা আসুন এবার আমরা আমাদের সিএমডি এমডির বক্তব্য শোনার আগে আজকে কিছু আমাদের ওয়ার্কার্স, কিছু লিডার্স এরিয়া থেকে কিছু স্টকিস্টের নাম দিয়েছেন। তা আমি এখানে শ্রদ্ধেয় সিএমডি স্যারকে ডেকে নেব। সিএমডি স্যারের হাতে ওনারা কিছু স্পট তুলে দেবেন। প্রথমে ডেকে নিচ্ছি শঙ্কর যাদব, চোপড়া ব্লক থেকে শঙ্কর যাদব। ইকো সেন্টার, অর্থাৎ 2 লক্ষ টাকার ইকো সেন্টার মানে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার নিচ্ছেন। জোরে একটা করতালি। ওনাকে আসার জন্য অনুরোধ করব। উনি আজকে আমাদের সিএমডি স্যারের হাতে 50,000 ক্যাশ তুলে দিচ্ছে, চেক তুলে দিচ্ছে শ্রদ্ধেয় স্যারের হাতে। ইকো সেন্টার মানে আমাদের এই প্রোডাক্টের ডিস্ট্রিবিউটার নিচ্ছে চোপড়া ব্লক। শঙ্কর যাদব আব আইয়ে। আমাদের স্যারের হাতে চেক তুলে দিচ্ছে আমাদের যাদবজি। জোরে তালি। চোপড়া ব্লকের উনি इको सेंटर होते चलेছেন। मिस्टर यादव जी को बहुत बहुत नवाजते हम सेविको ऑर्गेनिक कंपनी की ओर से। उनका ये योगदान उन एरिया का कृषक भाइयों के लिए बहुत कारनामा पैदा करे। করণদিঘি ব্লকে স্টকিস নিতে চলেছেন। উনি আজকে একটা চেক প্রদান করবেন অ্যাডভান্স 50,000। ম্যাডাম আইয়ে। হতে চলেছে 5 লাখ। জোরে একটা করতালি। স্যারের হাতে ক্যাশ তুলে দিচ্ছেন। আশীর্বাদ, অনেক শুভকামনা করছি। উনি করণদিঘি ব্লকের জন্য স্টকিস হতে চলেছেন। সাধারণ মানুষের, কৃষক বন্ধুদের কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। জিম্মেদারি কন্ট্রোল এবং গ্রোথ প্রমোটার, সয়েল ডেভেলপ এবং হেলথ কেয়ার এবং ভেটেনারি প্রোডাক্ট বিভিন্ন জায়গায় আমাদের স্টলগুলো দেওয়া আছে। অবশ্যই আমরা সেই স্টলগুলো ভিজিট করব এবং পাশে আমাদের সেলস কাউন্টার দেওয়া আছে, যেখানে আপনারা ইচ্ছা করলে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। সেই প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য আপনাদের জন্য সুন্দর একটা অফার আছে। আপনারা যদি 1000 টাকার প্রোডাক্ট কিনেন তাহলে 1000 প্রোডাক্ট সঙ্গে সঙ্গে গিফটে। পিএইচ লেভেল কেমন আছে আমরা কেউ জানি না। চাষ করতে গিয়ে আমরা ফসলে মার খাচ্ছি, ধসা লেগে যাচ্ছে, পচা লেগে যাচ্ছে। অনেক বন্ধু যারা একটু বোঝে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাটি পরীক্ষা করে তারপরে ফার্টিলাইজার ইউজ করে। কিন্তু আমরা মন মর্জি মতো ফার্টিলাইজার ইউজ করাতে আমাদের গাছে, আমাদের প্ল্যান্টে বিভিন্ন রোগ, বিভিন্ন সমস্যা। আজকে সেভিকোর পক্ষ থেকে আপনাদের কৃষক বন্ধুদের এই বড় একটা সমস্যার সমাধান আমরা দিতে চলেছি, যার জন্য আমাদের একটা লাস্ট ডান দিকে একটা কাউন্টার দেওয়া আছে, মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র। মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রে আপনার জমির মাটি দিলেই 20 মিনিটের মধ্যে আপনার মাটি পরীক্ষা করে আপনার হাতে তুলে দেবে এবং আপনি কি কি প্রোডাক্ট ইউজ করবেন পাশে কাউন্টারগুলো থেকে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন। এই একটা বড় আমাদের যে সেভিকোর পক্ষ থেকে এটা চাষি ভাইদের জন্য প্রোভাইড করা হচ্ছে। কোম্পানিকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। তা আসুন এবার আমরা শুনে নেব আমাদের সিএমডি স্যার, যার বক্তব্য না শুনলে আমাদের হয়তো ঘুমে আসবে না। আমরা সিএমডি স্যারকে অনুরোধ করব, মিস্টার জেকে স্যার ফ্রম পাটনা, যিনি এই কোম্পানির জন্মদাতা, ফাউন্ডার, যাই বলুন, আমাদের এই বেকার ছেলেদের একটা রুটির ব্যবস্থা করেছেন স্বয়ং জেকে স্যার। थैंक यू सर। काफ़ी प्रसन्नता की बात है कि सेविको ऑर्गेनिक जिस मिशन के साथ आज से 8 साल पहले शुरुआत की थी और मिशन एक ही था, और वो मिशन यही था कि ज़मीन को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि हमारे किसान बंधु, चाषी बंधु इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुके थे 8 साल पहले नहीं बल्कि 10 साल 20 साल पहले, कि धीरे धीरे हमारी ज़मीन जो है वो खराब हो रही है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे लेकिन गोबर की व्यवस्था कार्बनिक ट्रैक्टर और ट्रक के द्वारा
खेतों तक पहुंचाना डिफिकल्ट था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो ऑर्गेनिक मैटर को जमीन के अंदर अधिक से अधिक प्रदान कर सके, इसकी जानकारी नहीं थी। सरकार तो आज जो है एग्रेसिव हो चुकी है, चाहे राज्य सरकार हो, आपके पश्चिम बंगाल की सरकार हो, या केंद्र सरकार हो, या अन्य दूसरे राज्यों की सरकार है। आज ऑर्गेनिक यानी कार्योज ऑफ देश की सरकार के पास स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो हम रासायनिक तत्वों का खेतों में खेती के लिए भी उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बीमारियां अधिक से अधिक होती है। हम इस बात के लिए दवाइयां पर दवाइयां खाए जा रहे हैं, लेकिन उस बेस को नहीं ठीक पा रहे हैं कि अल्टीमेटली वो बीमारी उत्पन्न ही क्यों होती है। और उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्योंकि हम शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं। जब हमारा भोजन ही शुद्ध नहीं रहेगा तो सरकार को मेडिकल के ऊपर खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो सरकार की बहुत सारी एजेंसियां जब इस पर विचार की, और जब वेस्टर्न कंट्री के बारे में सोचा गया कि आज से लगभग 30 साल से 50 साल पहले उन्होंने ऑर्गेनिक को एडॉप्ट कर लिया। उन्होंने ऑर्गेनिक को एडॉप्ट कर लिया। जो एक भ्रम किसानों के अंदर था हमारे यहाँ, और वो भ्रम ये था कि जब हम ऑर्गेनिक प्रकार से खेती करेंगे तो हमारे अन्न के उत्पादन में कमी आ जाएगी। ये भ्रम था। सच्चाई मेरे प्रिय भाइयों, सच्चाई ये नहीं है, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, आपको तरीके नहीं मालूम है। अगर वो तरीका आपको मालूम हो जाए, वो चीजें मालूम हो जाए, तो आपकी अन्न की उत्पादकता में कोई कमी नहीं होने वाली है। और उसके पीछे जो ऊपर से आप किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप सोचिए एक बात है कि आज कीटनाशकों के प्रयोग से, जो रासायनिक कीटनाशक हम खेतों में उपयोग करते हैं, आपकी खेत में 20% से 30% फसलों की क्षति हो जाती है। 20% से 30% कितनों बचाव करिएगा, लेकिन फसलों की क्षति 20 से 30% होती है। और वो इसलिए होती है, वो कीट का प्रकोप इसलिए होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी सिस्टम की कमजोरी से रोग हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पौधों के ऊपर हुआ। क्योंकि उन्होंने शुद्ध भोजन नहीं लिया, उनको शुद्धता के साथ वो न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल पाया, वो कार्बनिक तत्व जमीन के अंदर खत्म हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि उनकी इम्यून भी कमजोर हो गई। और आप जानते हैं ना कि कमजोर को कोई भी हरा सकता है, हर जगह यही मामला है, कमजोर को हर जगह हरा सकता है। और जब हमारे पौधों के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता की कमी हो गई, तो क्या हुआ, कीटों का प्रकोप बढ़ गया। एक कीट का समाधान रासायनिक तत्वों के द्वारा हम कर रहे हैं, दूसरा कीट खेत में उत्पन्न हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक के प्रति इसलिए जागरूकता अभियान चला रखा है, ताकि हम खेत के जमीन के अंदर जो माइक्रोब्स, जिसको बोलते हैं छोटे जीवाणु, जिसकी कमी के कारण हमारे जमीन के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता होने के बावजूद पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसको पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक अभियान चला रखा। और उसी अभियान को हम लोगों ने 10 से 15 साल पहले सोच लिया कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, जिसका परिणाम आपके सामने है। आज हमें महसूस हुआ कि किसान भाइयों को ये नहीं मालूम है कि हमारे खेतों में कौन से एक्चुअल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी है, हमारे जमीन के अंदर वो पीएच मेंटेन है कि नहीं, ताकि हमारे माइक्रोब्स जीवित रह सके। तो हमने एक छोटा सा प्रयास करना शुरू किया, और हम 8वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मेरा पहला प्रयास इस्लामपुर की धरती से हुआ कि हम सॉइल टेस्टिंग का एक अभियान चलाना शुरू किए, ताकि किसान भाई ये समझ सके कि अगर हमारे खेतों के अंदर, हमारे जमीन के अंदर ये पोषक तत्व नहीं है, तो वही पोषक तत्व प्रदान कर सके। ये नहीं कि आपको अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है
बी कॉम्प्लेक्स कमी है, तो हम अधिक से अधिक विटामिन ई भी खाना शुरू कर दिए, जिंक भी खाना शुरू कर दिए, कैल्शियम भी खाना शुरू करिए, क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट दैट कि हमारी डिफिशियंसी क्या है। तो हमने एक सेविको के अंतर्गत एक अभियान शुरू किया और ये अभियान पूरे साल चलेगा। ये पूरे अभियान साल चलेगा। आज हम लोगों ने फर्स्ट, क्योंकि 5 फरवरी को हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो फरवरी से हम इस अभियान को शुरू किए हैं और पूरे अगले जनवरी तक चलेगा अभियान। अलग अलग जगहों पर हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लागत के हम उसके जमीन का सॉइल टेस्टिंग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको सही जानकारी दें और सही पोषक तत्व का ही वो धरती में इस्तेमाल कर सके। अनावश्यक नहीं कि ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, इससे नहीं होता है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा और मैं दूसरा चीज चाहूंगा कि आप भी एक शपथ लें, और वो शपथ ये है कि हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक बनाएंगे। कितना? ओनली 1 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक बनाएंगे अपने पूरे लाइफ में। और एक और काम करेंगे कि हम एक व्यक्ति को चुनेंगे जो इस प्रण के साथ, इस शपथ के साथ हमारे साथ रहे, या वो किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट यूज करे, लेकिन ये कोशिश करें कि हम कम से कम 1 एकड़ किसी को प्रोत्साहित करेंगे कि वो कन्वर्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।